Welcome students. Today I am going to deliver on the topic management of diseases of various crops. Actually, as you have studied earlier, there are so many diseases which was covered during your course curriculum. But nowadays, I would like to say something about disease management. How will you control disease and how will you manage the disease? Actually, there are three types. One is seed-borne, second one is soil-borne, and third one is airborne. Seed-borne means the disease which are spread through seed. That is called seed-borne disease. Seed-borne disease is of two types. One is external seed-borne disease and second one is internal seed-borne disease. External seed-borne disease means the pathogen when survives on the surface of the seed. That is called external seed-borne disease. Covered spot of barley is very good example of external seed-borne disease. Likewise, the pathogen survives inside the host, or you can say the pathogen survives inside the seed. That is called internal seed-borne. Loose spot of wheat is very good example of internal seed-borne disease. Second one is soil-borne disease. Soil-borne disease means the pathogen survives in the soil up to 5 years or maybe up to more than 5 years. If pathogen survives in the soil more than 1 year, the pathogen will be called soil-borne disease. If pathogen survive more than 1 month, then we can also say it is soil-borne disease. So soil-borne disease, generally the pathogen survives inside the soil. For example, Rhizoctonia, Pythium, Phytophthora, Albugo, and Fusarium, Sclerotinia. These are the soil-borne pathogen. This pathogen generally survives in soil up to 2 to 6 years. So this pathogen can be controlled a number of practices which will be discussed later on. Then third one is airborne disease. The pathogen which disseminate through air, that is called airborne disease. Airborne disease are generally rust of wheat is very good example of airborne disease. Likewise, powdery mildew. Powdery mildew is also very good example of airborne disease. In this way, we can say disease can be classified on the basis of spread of the disease, that is seed-borne, soil-borne, and airborne. Likewise, I would like to say something about seed-borne disease. There are so many practices which are used for management of the seed-borne diseases. Generally, we do seed treatment with fungicides. Definitely, if seed-borne disease you have to control, then on that case, seed treatment with fungicides or biocontrol agents is a very good practice for management of the disease. If seed-borne disease externally seed-borne pathogen is causing infection and cause external seed-borne disease, that is covered spot of barley caused by Aslago hordi. If this pathogen you have to control, then you should seed treatment with either systemic fungicide or non-systemic fungicide. Before this, I would like to say something about some systemic and non-systemic fungicide. Systemic fungicide is a fungicide that action is away from site of application. Or generally just Bevistine, Vitavax, hexaconazole, that is called Contaf, hexaconazole, difenoconazole. These all are systemic fungicides. Generally, these fungicides were used. These fungicides are used for as a seed treatment or seed dressing chemicals. So these are the systemic fungicides. Systemic fungicides, earlier I have already said, systemic fungicide is a fungicide which action is away from site of application. कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी फंजीसाइड अगर हम कहीं पर अप्लाई करते हैं और उसका एक्शन उससे हटकर दिखाई पड़ता है,
तथा उस जगह पे भी दिखाई पड़ता है तो उसको हम लोग सिस्टेमिक फंजीसाइड कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम कोई दवा खाते हैं, हमारे पैर के तलवा में जख्म हो जाए और हम मुंह में कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो डेफिनेटली हमारा तलवा में उसका असर पड़ता है। तो इस तरह का जो एक्शन है उसको हम लोग सिस्टेमिक एक्शन कहते हैं या सिस्टेमिक मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो हमारा बहुत सारा इस तरह से कुछ फंजीसाइड्स भी है जिसको हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसके सरफेस पर, लेकिन उसका एक्शन सीड के अंदर जा करके भी होता है। तो उस तरह के फंजीसाइड्स को हम लोग सिस्टेमिक फंजीसाइड कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा वही है, बीटावैक्स है, बेबिस्टिन है, मेटालिक्सिल है, बहुत सारे फंजीसाइड जो ऑलरेडी सीड ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो ये सब फंजीसाइड्स खास करके हम लोग सजेस्ट करते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज जो होता है, खास करके एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज को जनरली वो बोलते हैं नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स में हमारा जो जनरली होता है कैप्टान है, थीरम है, फिर उस तरह से इंडोफिलम 45 है। तो ये सब नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं। तो नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स अगर हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सीड बॉर्न पैथोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जब हमको समझ में नहीं आता है बात कि वास्तव में एक्सटर्नली है कि इंटरनली है, तो उस केस में हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप सिस्टेमिक फंजीसाइड ही यूज करें। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड अप्लाई करने से आसानी से हम सीड बॉर्न पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग सोलर एनर्जी से ट्रीटमेंट भी करने का सलाह देते हैं, लेकिन फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिजिबल नहीं है। ठीक उसी तरह से हम लोग खास करके हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जनरली हम लोग करते क्या है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर सर्टेन टाइम के लिए हम लोग उसको हॉट वाटर में बॉयल कराते हैं या कह सकते हैं कि गर्म करते हैं, ताकि उसका जो भी पैथोजन अंदर में है चाहे बाहर में है वो सारा का सारा पैथोजन मर जाए। तो जनरली हम लोग बोलते हैं, जैसे वीट के लिए एग्जाम्पल है कि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर सीड को 7 से 10 मिनट तक गर्म किया जाए तो जो भी इंटरनली और एक्सटर्नल सीड बॉर्न पैथोजन उसमें है वो सारा का सारा मर जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 55 से एबव होगा तो हमारा सीड का जो इंडोस्पर्म है वो भी मर जाता है। तो इसलिए एक सर्टेन टेम्परेचर पर 50 से 52 उतना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जनरली हम लोग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि वास्तव में ये फिजिबल है, कर सकता है हर आदमी। लेकिन अगर फार्मर्स के लिए बोला जाए तो रियली में थोड़ा कठिन काम है। तो जनरली हम लोग यही बात बोलेंगे कि सीड ट्रीटमेंट हम लोग आइदर केमिकल्स और बायो कंट्रोल एजेंट से सीड ट्रीटमेंट का हम लोग सजेस्ट करते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी सीड का छोटा साइज है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए दे लेंगे सरसों या कह सकते हैं तीसी, ये सब का सीड का साइज थोड़ा छोटा होता है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि 6 से 8 ग्राम बायो कंट्रोल एजेंट 6 से 8 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से सीड ट्रीटमेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब सीड का साइज बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए मेज का सीड है या कह सकते हैं कि आपका पीजीएनपी का सीड है, तो उसमें हम लोग 10 ग्राम रिकमेंड करते हैं। 10 ग्राम बायो कंट्रोल एजेंट पर केजी ऑफ सीड ट्रीटमेंट करके आसानी से उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सीड बॉर्न डिजीज का कंट्रोल करने का बेस्ट टेक्निक वही है कि वास्तव में हम लोग जो सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी से हम सीड बॉर्न पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से बात करें अगर हम सॉइल बॉर्न पैथोजन का, सॉइल बॉर्न पैथोजन में जनरली हम लोग होता क्या है कि जो भी सॉइल बॉर्न पैथोजन है उसको आसानी से हम तुरंत मार नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि बहुत सारा जो फंगस है जो सॉइल बॉर्न नेचर होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए राइजोक्टोनिया है, पिथियम है, फाइटोप्थोरा है, एल्बुगो है, स्क्लेरोटिनिया है, फिर जा करके बहुत सारे कह सकते हैं कि स्क्लोसियम भी है। तो ये सब जितने भी खास करके जो फंगस है, सारा का सारा फंगस कह सकते हैं कि सॉइल बॉर्न नेचर का होता है। अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर या कह सकते फिजेरियम भी हमारा ये भी सॉइल बॉर्न नेचर होता है। तो ये सब को कंट्रोल करने का बेस्ट टेक्निक ये है, सबसे पहला सस्ता मैंने फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो हमारा वास्तव में सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप क्रॉप रोटेशन को फॉलो करिए। क्रॉप रोटेशन मतलब 3 से 4 साल या कसते 2 से 3 साल या 3 से 4 साल उसी फील्ड पर उस क्रॉप को या उस फैमिली के क्रॉप को हम लोग फील्ड पे नहीं लगाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर सपोज कीजिए कि आप टमाटर का कल्टीवेशन कर रहे हैं या कोई भी फार्मर टमाटर कल्टीवेशन कर रहा है और वहाँ विल्ट बार बार आ रहा है उस फील्ड में, तो एवरी ईयर देखिएगा उसका विल्ट का पॉपुलेशन वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि विल्ट का जो विल्ट का फिजेरियम जो है वो सॉइल में पड़ा रहता है और वो डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है, और जब क्रॉप जिस सीजन में आता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है और क्रॉप को अटैक करता है और अल्टीमेटली क्रॉप को मार देता है।
कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, खास करके कि टमाटर के केस में या बैगन के केस में या और भी दूसरे या कैप्सिकम के केस में, कि शुरू में पौधा जिंदा रहता है, लेकिन 1 महीना के बाद जब उसमें फल लगना शुरू होगा तब उसका लक्षण दिखाई पड़ता है। या फल, बहुत सारा फल लग जाता है, छोटा छोटा फल का साइज रहता है, उसमें उसका सिम्टम दिखाई पड़ता है, और तुरंत प्लांट को कुछ दिन के बाद में, 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद में प्लांट उसका मर जाता है। तो उस केस में किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर फ्रूट सेटिंग हो गया और फंगल इन्फेक्शन हो गया तो कह सकते हैं निश्चित रूप से हमारा उस केस में हमारा दिक्कत होता है। सबसे बड़ा ये कह सकते हैं हमारा, खास करके देखते हैं हम लोग है उस केस में कि जब मान लीजिए फ्रूट लगा हुआ है और छोटा छोटा लगा है और उस समय बीमारी का लक्षण दिखाई पड़ता है, अल्टीमेटली प्लांट मर जाता है, जिसको हम लोग विल्ट बोलते हैं। तो विल्ट आने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, या किसान, किसी भी किसान का, अगर जो लगाते हैं किसान और उस समय अगर बीमारी का लक्षण दिखाई पड़े तो उसको मैनेज करना बड़ा कठिन है। सॉइल बोर्न पैथोजन को खास करके हम लोग ईजी वे में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा पहले से ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए। सबसे पहला हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंट वैरायटी को आप लगावें। जिस टमाटर का केस में हम कहेंगे ही कि रेसिस्टेंट वैरायटी, खास करके जो टमाटर में आता है, जो बैक्टीरियल विल्ट जो खास करके लगता है, तो उसके लिए हम लोग स्वर्ण लालिमा बोल के एक वैरायटी होती है। स्वर्ण लालिमा जो वैरायटी है वो रेसिस्टेंट है अगेंस्ट बैक्टीरियल विल्ट, तो उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर ब्रिंजल में बात करेंगे तो ब्रिंजल में हमारा स्वर्ण श्यामली वैरायटी होती है, तो स्वर्ण श्यामली लगाने से उसमें विल्ट प्रॉब्लम नहीं आता है। तीसरा जो रेसिस्टेंट वैरायटी है उसको ग्रो करना चाहिए, पहला रिकमेंडेशन मेरा ये होना चाहिए। दूसरा, क्रॉप रोटेशन अप्लाई करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब 2 से 3 साल तक हम उस फैमिली के या उस क्रॉप को हम उसी फील्ड पर नहीं लगाएंगे, उसके बदले में दूसरे क्रॉप को लगाएंगे जो उस फैमिली को बिलोंग नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जिस प्लॉट में मान लीजिए कि विल्ट बराबर आता है, मान लीजिए टमाटर के लगाए या बैगन लगावे या विल्ट बराबर आता है, तो उस केस में हम लोग रिकमेंड क्या करेंगे कि सोलेसी फैमिली के जो भी क्रॉप है, चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, आलू हो, मिर्चा हो, इस तरह से सोलेसी फैमिली की जो भी क्रॉप है उस फील्ड में हम लोग नहीं ग्रो करेंगे। उसके बदले हम लोग वहाँ क्या लगा देंगे, सरसों लगा देंगे, वहाँ पर क्या लगा देंगे, फूल गोभी लगा देंगे, या हम लोग पत्ता गोभी लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग, या धनिया लगा देंगे, तो दूसरे फैमिली के क्रॉप को लगाएंगे तो निश्चित रूप से पैथोजन मेरा आराम से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं क्रॉप रोटेशन करके, ताकि आसानी से हम डिजीज को कंट्रोल कर सके। तो दूसरा तरीका हमारा क्रॉप रोटेशन। तीसरा हमारा क्या है, समर प्लाविंग। जनरली हम लोग अप्रैल मई महीना में जब कभी कभी बारिश होती है तो उस जगह खेत को बढ़िया से जोत देना चाहिए। जोतने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी सॉइल बोर्न पैथोजन है वो सन के हीट से मर जाता है। उस समय का टेम्परेचर जनरली देखा जाता है 40 प्लस होता है, 40 प्लस। तो 40 प्लस में क्या होता है, बहुत सारा उसका अंडा, लार्वा, जो भी कर सकते हैं, या उसके जो भी स्पोर्स होते हैं सारे के सारे वो मरने लगते हैं ड्यू टू सनलाइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समर प्लाविंग करना चाहिए, जहाँ पर अगर सॉइल बोर्न पैथोजन का वास्तव में प्रॉब्लम होता है। समर प्लाविंग करने से दूसरा फायदा ये भी होता है, नहीं केवल फंगस कंट्रोल होता है, बल्कि वहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी वीड्स है, उसका भी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है, या कहते हैं वो भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है अगर समर प्लाविंग किया जाए। चौथा, अगर हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट को यूज करें, जैसे ट्राइकोडर्मा के केस में हम लोग बोलते भी हैं कि ट्राइकोडर्मा को अगर मास मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, या ट्राइकोडर्मा पाउडर को सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाए, या ट्राइकोडर्मा का घोल बना के स्प्रे कर दिया जाए, तो आसानी से सॉइल बोर्न पैथोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरली हम लोग बोलते क्या है कि ट्राइकोडर्मा को हमेशा मास मल्टीप्लिकेशन करके ही जनरली लगाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ट्राइकोडर्मा अगर 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम कच्चा सड़ा हुआ गोबर में, कच्चा सड़ा हुआ गोबर में, ये कच्चा मतलब कि जो 10 दिन 20 दिन 50 दिन 40 दिन पुराना 100% डिकम्पोज ना हो, मतलब कहने का मतलब 1 साल या 6 महीना पुराना गोबर नहीं, जो पार्सली डिकम्पोज जो गोबर होगा उसमें ट्राइकोडर्मा तेजी से मल्टीप्लाई करता है। तो 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना, या कह सकते हैं कि 15 दिन पुराना, वही सब सड़ा हुआ गोबर लेंगे। 15-20 दिन पुराना, 1 महीना पुराना जो लेने से फ़ायदा ये होता है कि ईजी वे में उसमें तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है ट्राइकोडर्मा। तो 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर के साथ में उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसको कोई छाया जगह पर हम उसको इकट्ठा मिक्स करके रख देते हैं। फिर उसमें हल्का सा पानी छीट करके और ये जूट का बोरा से ढक देते हैं। तो जूट को बोरा से ढकने से फ़ायदा ये होता है कि वास्तव में उसका अंदर का नमी बना रहेगा, और जब नमी बना रहेगा तो ट्राइकोडर्मा जो हम डाले हैं
जो बायो कंट्रोल एजेंट है या कह सकते हैं अपने आप में एक फंगस है जो तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, तो 4-5 दिन के बाद में फिर उसमें हम लोग पलटी मारते हैं, मैंने कह सकते हैं मिक्स करते हैं। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी ट्राइकोडर्मा मिलाते हैं वो एक समान रूप से वास्तव में फैलता नहीं है। तो इसके कारण से हम लोग इसको एक बार पलटी मारे 5 से 7 दिन के बाद में, फिर 5 से 7 दिन के बाद दूसरा बार पलटी मारे, फिर 5 से 7 दिन तीसरा बार पलटी मारे। इस तरह से 20 से 25 दिन तक उसको हम लोग पूरा बढ़िया से मिक्स करते रहते हैं 2 से 3 बार। अब मिक्स करने के बाद में तब उसको 20 से 25 दिन पुराना जो कष्ट ट्राइकोडर्मा बेस्ड गोबर खाद हमारा बना, उसको हम लोग रोपाई के समय में हम लोग खास करके बोलते हैं कि जड़ के पास में डालना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर सपोज कीजिए टमाटर लगाते हैं या बैगन लगाते हैं या शिमला मिर्च लगाते हैं, तो उस केस में हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि ट्राइकोडर्मा बेस्ड गोबर खाद डालने पर आसानी से सॉइल बोर्न पैथोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट का भी हम लोग यूज करने का सलाह देते हैं। अब 5वां सलाह ये होगा कि आप उसमें नीम का खल्ली या करंज का खल्ली 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग अगर हम डालते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम आसानी से वो सॉइल बोर्न पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके जनरली हम लोग बोलते भी हैं कि जो भी करंज का खल्ली या नीम का खल्ली है उसको आप बढ़िया से पीस लीजिए, पीस करके उसको और थोड़ा थोड़ा कर करके अंदाज से जड़ के पास में दीजिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। उस तरह से करने पर उसमें जो भी करंज का खल्ली या नीम का खल्ली उससे कुछ अल्कलॉइड निकलता है जो सॉइल बोर्न पैथोजन को वहाँ सर्वाइव करने नहीं देता है, या कह सकते हैं कि सॉइल बोर्न पैथोजन को मार देता है। तो उस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं कि विल्ड पैथोजन को हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल बोर्न पैथोजन कंट्रोल करने का पहला तरीका हमने क्या बताया, रेजिस्टेंट वैरायटी लगाइए। दूसरा तरीका क्या बताया, क्रॉप प्रोटेक्शन करिए। तीसरा तरीका क्या बताया, बायो कंट्रोल एजेंट यूज करिए। चौथा तरीका क्या बताया, समर प्लाविंग करिए। पांचवा तरीका क्या बताया, हम एप्लीकेशन ऑफ नीम और करंज के एट द टाइम ऑफ सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग। फिर छठा तरीका इसका होगा सबसे अच्छा कि आप जो भी सॉइल बोर्न पैथोजन सॉइल बोर्न डिजीज दिखाई पड़ रहा है उसका रोग आउट करना चाहिए। मतलब मुंह माया आप मत करिए। जहाँ भी इन्फेक्टेड प्लांट अगर 5% से कम है किसी फील्ड में तो सीधे वहाँ जड़ से कबाड़िए और कबाड़ करके कोना में ले जाइए और वहाँ जाके जला दीजिए। तो इस तरह से ये इस तरह का मैनेजमेंट करेंगे तो हम आसानी से सॉइल बोर्न पैथोजन को हम कह सकते हैं कि आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से पहला मैंने बताया सीड बोर्न डिजीज के कंट्रोल करने का तरीका, दूसरा बताया सॉइल बोर्न डिजीज के कंट्रोल करने का तरीका, तीसरा है जो वास्तव में तीसरा जो हमारा है वो है एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज का हर डिजीज के अगेंस्ट में अलग अलग रिकमेंडेशन है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए हमको पाउडरी मिल्ड्यू है, तो सभी लोग आप लोग पढ़े भी होंगे, हम समझते जानते भी होंगे। पाउडरी मिल्ड्यू का कंट्रोल करने का बेस्ट टेक्निक क्या है, वास्तव में जनरली हम लोग बोलते हैं सल्फर फंजीसाइड को यूज करना चाहिए। सल्फर फंजीसाइड अप्लाई करने से आसानी से हम पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स में जिसमें हम लोग अगर पाउडरी मिल्ड्यू आता है तो उसको में हम लोग जनरली सल्फर फंजीसाइड रिकमेंड नहीं करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स, ये दोनों में हम लोग अगर इस डिजीज को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं केराथिन नामक दवा। केराथिन जो है मार्केट में डायनोकेप के नाम से आता है और केमिकल नेम उसका केराथिन ही है। तो केराथिन का 0.15% केराथिन का स्प्रे करेंगे तो हम आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा यही रिकमेंडेशन होगा कि पहला आपसे कोई पूछे कि कोई पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने का बेस्ट फंजीसाइड का नाम बताइए, तो उसके लिए हम यही बोलेंगे केराथिन नामक फंजीसाइड एक ऐसा फंजीसाइड है जिसको सभी क्रॉप में, केवल कुकुरबिट्स में नहीं, केवल एप्पल में नहीं, हर क्रॉप में हम केराथिन का स्प्रे करके पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सल्फर फंजीसाइड जो है वो इन जनरल हम लोग बात बोलते हैं कि सल्फर फंजीसाइड के द्वारा पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो रिकमेंडेशन होगा स्पेसिफिक होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा रिकमेंडेशन हो जिसमें कि 100% उसका रिजल्ट आवे। तो पाउडरी मिल्ड्यू किसी में आता है तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप जनरली हमेशा फर्स्ट नेम केराथिन का बताया कीजिए, सेकंड नेम सल्फर फंजीसाइड का बताया कीजिए। तो जनरली हम एक बात और भी ध्यान रहे, कोई भी दवा का बताते हैं रिकमेंडेशन, उसके साथ साथ आप दवा का सही डोज बतावे जरूर। क्योंकि ऐसा देखा जाता है सही दवा आपने बता दिया लेकिन उसका डोज अगर सही नहीं मालूम है किसान को तो निश्चित रूप से फिर भी उसका गलत असर पड़ता है। कहने का अर्थ यह है सही दवा डाल रहे हैं लेकिन दवा का अमाउंट ज़्यादा है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो प्लांट को हार्म पहुँचाएगा, या दवा का डोज कम है तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जैसा उसका इफेक्टिव होना चाहिए। इसीलिए सही दवा के साथ साथ सही डोज डालना बहुत जरूरी है।
तो इसलिए हम बार बार बोलेंगे कि हमको दवा का डोज भी जरूर पता होना चाहिए। इन जनरल हम थंब रूल बताते हैं आपको है, सीड ट्रीटमेंट कोई भी दवा करते हैं तो दवा का डोज 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज होता है इन जनरल। लेकिन अगर सपोज कीजिए बायो कंट्रोल एजेंट जो 2 से 3 ग्राम जो होता है केमिकल फंजीसाइड्स के लिए होता है, लेकिन अगर बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं तो 6 से 8 ग्राम छोटे सीड के लिए या 10 ग्राम बड़े सीड के लिए। ये हमारा रिकमेंडेशन यही होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का, जो ट्राइकोडर्मा हो, सीडोमोनास हो, जो भी आपका अवेलेबल हो सीड ट्रीटमेंट जिसे आप सजेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग 6 से 8 ग्राम छोटे सीड के लिए और बड़े सीड के लिए 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग को सीड ट्रीटमेंट का रिकमेंडेशन हो रहा है। दूसरी बात ये बोलना चाहेंगे कि अगर सिस्टेमिक फंजीसाइड है तो उसका सीड ट्रीटमेंट हमेशा 2 ग्राम से ही करेंगे। अगर नॉन सिस्टेमिक है तो उसका हम लोग 3 ग्राम से बोलते हैं, जैसे कैप्टान है, थीरम है, इसका हम लोग 3 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से बोलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर दवा स्प्रे करने की जब बात करते हैं तो जितने भी सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है उसका डोज हमेशा कम होता है स्प्रे करने के लिए, जो एयरबॉर्न डिजीज पर्टिकुलरली मैनेज करने के लिए। तो एयरबॉर्न डिजीज को जो हम लोग कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे करते हैं दवाई, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का डोज 0.05 से 0.1%, 0.05 से 0.1% रिकमेंडेशन हम लोग जनरली हमारा रहता है। या कह सकते हैं कि 0.05 से 0.1% ही हम लोग स्प्रे करने का सलाह देते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जिसका डोज बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेटिवो एक दवा है जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन, टेबुकोनाजोल 50% है, ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन उसमें 25% है। तो उसको हम लोग सीड ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। उसका सीड ट्रीटमेंट का 1 ग्राम प्रति केजी सीड की दर से हम लोग सीड ट्रीटमेंट करने का सलाह देते हैं। और अगर स्प्रे करके उसको डिजीज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए 0.04%, मतलब 4 ग्राम दवा प्रति 10 लीटर पानी, 4 ग्राम दवा प्रति 10 लीटर पानी का हम लोग घोल बना करके स्प्रे करने का सलाह देते हैं। हम अभी जो बता रहे थे कि कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड है जिसको स्प्रे करना है बीमारी को रोकने के लिए, तो उसके लिए हम जनरली बोलते हैं 0.05 से 0.1% इन जनरल। लेकिन नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है तो 0.2% या 0.25% स्प्रे करने का सलाह देते हैं। ये अब कहने का अर्थ यह है, अगर 0.2% बोलते हैं मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम दवा या 2 ml दवा प्रति लीटर पानी का घोल बना करके हम लोग स्प्रे करने का सलाह देते हैं। और अगर इसी तरह से हम बात करेंगे लिक्विड है तो 2 ml दवा, लिक्विड का हेक्साकोनाजोल मार्केट में लिक्विड के फॉर्म में आता है, डाइफेनकोनाजोल मार्केट में लिक्विड के फॉर्म में आता है, केराथिन लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो ये सब अगर मान लीजिए हम बोलते हैं 0.2% मतलब 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। ये किसान को सबसे पहले हम ये बार बार बोलेंगे परसेंटेज में अपना बता करके उसको अमाउंट बताइए। 2 ml दवा प्रति लीटर पानी का घोल बना करके आप स्प्रे करना है, या 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी का घोल बना करके स्प्रे करना है। तो इस तरह से आप बताएंगे तो किसान को भी आसान होगा और हम समझते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि परसेंट बोले से किसान कभी कभी कंफ्यूज करने लगते हैं। इसीलिए जब भी इसको डोज बताइए किसान को तो प्रति लीटर पानी में कितना दवा पड़ेगा उस चीज़ को बताना चाहिए। क्योंकि जो हम आपको पढ़ाते थे या जब आप क्लास में पढ़ते थे तो उसमें हम लोग परसेंटेज के सेंस में हम लोग बात करते थे। लेकिन जब किसान के पास आप जाते हैं तो किसान को हमेशा अमाउंट उसके या तो इतना ml पर लीटर पानी घोल बनाइए या इतना ग्राम पर लीटर पानी घोल बनाइए। इस तरह से आप सजेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से किसान के लिए आसान होगा और किसान को हम सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात, जब आप फार्मर्स फील्ड पर हैं तो एक चीज़ आप और भी ध्यान रखेंगे, किसान की बात को ज़्यादा सुनेंगे, आप थोड़ा कम बोलेंगे, उसकी बात को सुन करके कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो आप जानते हैं सही रिकमेंडेशन आप देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं जान रहे हैं, नहीं बता सकेंगे, तो आप बोलिएगा कि ठीक है आप हमको समय दीजिए 2-4 घंटा या 1 दिन, ताकि हम आपको अच्छे तरह से पढ़ करके समझाएंगे। चूँकि हम स्टूडेंट हैं, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए सही अर्थ में कि हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम ज़्यादा बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा समय दीजिए, हम आपको सही बताएंगे। लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड से आंसर देना पड़ता है। तो उस केस में हम यही बोलेंगे कि नॉन सिस्टेमिक को प्रीफर ना करके सिस्टेमिक फंजीसाइड्स को ही आप रिकमेंड करें फॉर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सीड ट्रीटमेंट करना है तो सिस्टेमिक को प्रीफर करेंगे, अगर स्प्रे करके भी डिजीज को कंट्रोल करना है तो सिस्टेमिक को ही रेफर करेंगे। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स जो भी हैं जो मार्केट अवेलेबल है, जैसे आप भी जानते हैं मार्केट में बेबिस्टिन के नाम से आता है, हेक्साकोनाजोल है, डाइफेनकोनाजोल है या मेटालिक्सिल है। ठीक उसी तरह से हमारा
कह सकते हैं कि नेटिवो, जिसको हम अभी बता रहे थे, टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन है, तो या बेनलेट है, बहुत सारे इंसेक्ट फंजीसाइड्स ऐसे हैं जो सिस्टेमिक नेचर के हैं। तो हम लोग उसी को रिकमेंड करते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। तो ये इस तरह से हम आपको यही बात बोलेंगे, सिस्टेमिक जब आपको लगता है कि